Hello everyone, I welcome you all again to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6. In this presentation, we'll be covering Chapter 2 whole numbers and we'll be finding the answers to the questions of exercise 2.3. Let us proceed to the first slide. The very first question says, which of the following will not represent 0? तो ये क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इन चारों पार्ट्स का सोल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग द ऑपरेशंस दैट आर गिवन टू अस और हमें इन चारों पार्ट्स में से वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसका आंसर 0 नहीं होगा. So let us have a look at the parts first. The first part is 1 plus 0. B part is 0 multiplied by 0. C part is 0 divided by 2. And D part is 10 minus 10 divided by 2. These are simple operations, so we won't be requiring any rigorous calculations in this. Let us have a look at the first part. Okay, जब हम first part को solve कर रहे हैं, so the first part is what is the answer to 1 plus 0. We know कि जब भी हम 0 में कोई नंबर प्लस करते हैं या ऐड करते हैं, we always get the answer as the number itself. So यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो 1 दे रखा है, तो अगर हम 0 में 1 प्लस करते हैं, so obviously हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 1, which is the number itself. So I have identified this part that इस part का answer is not representing 0. So yes, this part satisfies the demand of the question. Let us have a look at the B part now. The B part says, what is the answer to 0 multiplied by 0? हमारी मैथमेटिक्स में एक बेसिक रूल है कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, we always get the answer as 0. No matter how long or large or small the number is, we will always get the answer as 0. So यहाँ पर क्योंकि हमारे प्रोडक्ट है वो भी 0 multiplied by 0 है, and we know कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, we'll get the answer 0. So here we go, we got the answer as 0 of the B part. But this part doesn't satisfy the demand of the question because it does represent 0. Let us have a look at the C part now. The C part has been given in the form of a fraction. ये fraction है जहाँ पर 0 numerator है और 2 denominator है. हमें पता है कि जब कभी भी numerator में 0 आ जाता है, irrespective of what is there in the denominator, हमारा आंसर जो है वो हमेशा 0 ही माना जाता है, because फिर इस fraction की कोई वैल्यू नहीं रही, just like 0. Therefore, the answer to C part is 0 only. Hence, this part also doesn't satisfy the demand of the question because it is representing 0. Moving on to the D part now. सबसे पहले हमें इस D part को solve करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो numerator है उसमें हमें एक ऑपरेशन दे रखा है दो नंबर्स के बीच में. So let us solve the numerator first. So what is 10 minus 10? It is 0 only. Upon, you all know ये upon का sign होता है क्योंकि हम fractions में ऐसे represent करते हैं. 2 remaining the same, हमारा 2 नीचे आ जाएगा, and we can clearly see that the C and the D part are same or they are equal. Hence, the reason for the D part is same as the C part, और जो हमारा D part का आंसर आएगा वो भी 0 ही आएगा. Therefore, ये भी हमारे क्वेश्चन को satisfy नहीं करता. So there is only one part, that is the A part, that gets the answer not as 0 but a number which is apart from 0. So this is the only part which doesn't represent 0. Hence, A is the correct answer. This was it for question 1. Let us move to question number 2. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples.
पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है. द क्वेश्चन सेज दैट अगर दो नंबर्स या दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो क्वेश्चन कहता है अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमें उसका आंसर चाहिए 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? क्या हम ये कह सकते हैं कि या तो इन दोनों को 0 होना चाहिए या फिर इन दोनों में से एक को 0 होना चाहिए, या तो पहले वाला नंबर 0 हो या फिर दूसरे वाला नंबर 0 हो. Quoting the same line again that I just told you in the previous slide, कि जब कभी भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर हमेशा 0 ही आता है. तो अगर मुझे यहाँ पर 0 चाहिए तो इन दोनों में से एक नंबर को 0 होना ही पड़ेगा. लेकिन हमारी जो सेकंड कंडीशन है कि क्या दोनों नंबर 0 होने में भी हमारा आंसर 0 आएगा, वो भी ट्रू रखती है, क्योंकि आप जब भी किसी नंबर को भी चाहे वो 0 ही क्यों ना हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा. Therefore, both these conditions satisfy here. Yes, we can say that if the product of two whole numbers is 0, then either one or both of them are zeros. तो at least एक नंबर का 0 होना बहुत जरूरी है. This is because any number multiplied by 0 becomes 0 only. For example, 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, etc. So this is it for this question. Moving on to question number 3 now. It says if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples. तो क्वेश्चन समझते हैं. पहले क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर दो नंबर्स हैं या दो होल नंबर्स हैं, हमें अगर उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अपना आंसर एज 1 चाहिए. उन्होंने हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं. कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? इसका क्या मतलब हुआ कि या तो दोनों को 1 होना जरूरी है या फिर इन दोनों में से एक नंबर को 1 होना जरूरी है. इज इट सो? लेट अस सी. If the product of two whole numbers is 1, then both of them should be 1. आंसर हमें क्या बता रहा है कि अगर हमें दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 चाहिए तो हमेशा दोनों नंबर्स को 1 होना जरूरी है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर जो आता है वो आता है द नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर 1 नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा 3. लेकिन अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 1 आएगा. इसका मतलब जब भी हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 चाहिए तो हमारे दोनों नंबर्स को 1 होना जरूरी है. This is so because 1 is the multiplicative identity for whole numbers. This is a very important point. What do you understand by multiplicative identity? Multiplicative identity का मतलब है कि whenever we multiply any whole number with 1, the answer or the product is the number itself. Hence, any number multiplied by 1 gives the number itself. In order to obtain the product of two whole numbers as 1, 1 should multiply by itself. 1 को खुद से multiply होना जरूरी है. This is it for this question. Let's move to question number 4 now. Find using distributive property. So, though we have already studied distributive property in the previous presentation, that is exercise 2.2, let us have a recap of what the distributive property was. तो distributive property कहती थी कि अगर A, B
एंड सी 3 होल नंबर्स हैं, ये कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं, मैंने रैंडम लिया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट बी प्लस सी will be equal to bracket a into b bracket close plus why because ऑपरेशन जो था वो हमें प्लस दे रखा था, प्लस a into c ब्रैकेट अगेन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक नंबर को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाए, रिगरस कैलकुलेशंस की जरूरत ना पड़े और हमारा क्वेश्चन को देखकर ही ओरली आंसर निकल आए। यूजुअली उसी नंबर को स्प्लिट किया जाता है जो हमें 10, 100 या 1000 दे, या फिर लास्ट में उसके हमें जीरो मिले, बिकॉज जब भी हमें जीरो मिलता है हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन। The A part is 728 multiplied by 101. इस केस में जब हम 728 को 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, because the question has mentioned that we have to use the distributive property. Now, in order to use the distributive property, हमें इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा। हम स्प्लिट कौन से नंबर को करेंगे? प्रेफरेबली उस नंबर को जो हमें 10, 100 या 1000 दे। तो अगर हम 101 को स्प्लिट करते हैं जिसको हम 100 plus 1 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा विदाउट मच कैलकुलेशन। So 728 remaining the same, multiply 100 को हम 101 को हमने 100 plus 1 में स्प्लिट कर दिया और ब्रैकेट्स में पुट कर दिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? 728 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन 100 एंड 1। In this part, in this particular part, all you need to remember and take care of is जो हमें ऑपरेशन दे रखा है, that is plus. So यहाँ पर माइनस भी हो सकता था, but since यहाँ प्लस है इसलिए हमने प्लस ही पुट करा है। So once 728 is multiplied by 100, we get the answer as 72,800. Again, जब हम 728 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 728, the operation being plus. So after we calculate these two, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 73,528 is the answer. This was it for the A part. Let's move to the B part now. The B part says 5,437 multiplied by 1,001. Clearly 1,001 को हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि इससे हमें 1000 मिल जाएगा और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगेन द सेम थिंग, हमने 1001 को स्प्लिट किया, 5,437 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन 1000 एंड 1. So what is 5,437 into 1000? It's 54,37,000. बीच में प्लस का ऑपरेशन है वो एज इट इज रहेगा, और जब हम 5,437 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, multiplicative identity that we did in the last slide, the answer itself. So हमारा जो सॉल्व करने के बाद आंसर निकल कर आया वो आया 54,42,437. Let's move to the C part now. It is 824 multiplied by 25. अब इन दोनों में हालांकि हम दोनों को स्प्लिट कर सकते थे, like we could have split 824 as well. It could have been 800 plus 24. We could split 25. It could become 20 plus 5. But what is more convenient is 25 को स्प्लिट करना, क्योंकि वो एक छोटा नंबर है और जो हम जब स्प्लिट करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे लिए मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ 25 को स्प्लिट किया है एज 20 plus 5. Now the steps remain the same. अब हम 824 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
between 20 and 5. Operation being plus. What is 824 multiplied by 20? It is 16,480. And what is 824 multiplied by 5? It is 4,120. After you solve this, you will get the answer as 20,600. Okay. Moving on to D part now. It is 4,275 multiplied by 125. अब हम preferably किसको split करेंगे? 125 को split करेंगे. 125 split करने के दो तरीके हैं. या तो हम इसे लिखें 100 plus 25, या तो हम इसको 100 plus 25 लिखें, या फिर एक तरीका और है कि हम 25 को further split कर दे as 20 plus 5. There is no problem कि अगर आप एक नंबर को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हो या तीन में, it hardly matters. हमारा जो काम है, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमें अपनी कैलकुलेशंस इजी करनी है. So हमने 125 को कैसे स्प्लिट किया? We did it like 100 plus 20 plus 5. Now the step remains the same. हम 4,275 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे between 100, 20 and 5. So what is 4,275 multiplied by 100? It's 4,27,500. And what is 4,275 multiplied by 20? It is 85,500. And lastly, when we multiply 4,275 by 5, we'll get the answer as 21,375. जब हम तीनों को ऐड कर देंगे, we'll get the answer as 5,34,375. Okay, moving on to the E part now. It is 504 multiplied by 35. Clearly 35 is a smaller number. We'll split 35. So 504 multiplied by 30 plus 5. Again, distributing 504 into 30 and then 504 into 5. By doing the calculations as required, we get the final answer as 17,640. So this was it for the E part as well and for question number 4. Moving on to question number 5. The question says that we need to study the pattern. So this is a pattern जो हमें दे रखा है. हमें इस pattern को study करना है और फिर हमें next 2 steps इसके बताने हैं. Can you say how the pattern works? इन्होंने हमें एक hint भी provide कर रखी है that 1, 2, 3, 4, 5 is equal to 5 times 1, then 4 times 1, then 3, then 2, then 1. So let's see how helpful this hint and where we'll use this hint in the question. Okay. So जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है या उनके नेक्स्ट स्टेप्स फाइंड करने होते हैं, it becomes very important for us to identify the pattern first from the very first step. अब हम इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये देखते हैं. इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरी लाइन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, और जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है यानी कि दूसरी तरफ है हम उसको राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, RHS. फॉर इंस्टेंस फर्स्ट जो हमारी लाइन है उसमें दिस इज LHS एंड दिस बिकम्स RHS. बाकी की लाइंस में भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे. तो अब जरा ये देख लेते हैं कि LHS में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. LHS में हमारे पास सबसे पहला था 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 देन प्लस 1. अब जब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो हमने देखा कि 1 के साथ एक नंबर और आ गया है, दैट इज 2. जो 8 है वो सेम रहा, जो प्लस के बाद का नंबर है वो भी 1 के बाद का नंबर आ गया है. या अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, जो हम नंबर यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं वही नंबर हमारा यहाँ आ रहा है. तो एक पैटर्न हम थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि सबसे पहले
ये एक काउंटिंग चल रही है, स्ट्रेट काउंटिंग, 8 इज सेम, एंड देन जो यहाँ आ रहा है वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा है, यानी कि 1 के बाद 2 आता है तो यहाँ 2 आ गया. लेट्स सी अगर हमने पैटर्न ठीक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. फॉर दैट वी नीड टू गो टू द थर्ड स्टेप नाउ. थर्ड स्टेप में भी हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ काउंटिंग चल रही है, 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, 8 सेम है, और जो ये थर्ड नंबर आ जाता है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है ऑफ द प्रीवियस नंबर. सो आई गेस वी हैव आइडेंटिफाइड द पैटर्न क्वाइट क्लियरली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अगेन हमने काउंटिंग इंक्रीज कर दी बाय वन नंबर, 8 रिमेनिंग द सेम, 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. हमने फिर काउंटिंग इंक्रीज कर दी बाय वन नंबर, 8 इज द सेम, और 4 का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो है 5. सो आई गेस वी कैन इजिली फाइंड द नेक्स्ट 2 स्टेप्स नाउ. अभी हम सिर्फ LHS की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने 5 पे स्टॉप कर दिया था, तो अब यहाँ पर हम 6 तक उसको लेके जाएंगे. सो इट विल बी 1 2 3 4 5, और हमें सिर्फ एक नंबर बढ़ाना है, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, जो सारे सेट्स में सेम चलता आ रहा है, प्लस यहाँ पर क्या पैटर्न था कि जो पिछला नंबर है उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा. तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गया, 6 हो गया 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर. सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6. पिछले क्वेश्चन में हमने 6 तक किया था, यहाँ हम 7 तक इंक्रीज करेंगे काउंटिंग को. 8 सेम ही चलता आ रहा है सारे स्टेप्स में, और प्लस के बाद वो नंबर आ रहा है जो पिछले स्टेप के बाद का कॉन्जिक्यूटिव नंबर था, दैट इज 6 के बाद आता है 7. So we've identified the next 2 steps for LHS right now. अब क्योंकि हमने ये कर लिया, अब RHS में मूव ऑन कर जाते हैं. RHS का पैटर्न क्या चल रहा है, 9 था पहले, उसके बाद उन्होंने 9 8 कर दिया, then 9 8 7. So I guess we've recognized what is happening here. यहाँ ये रिवर्स काउंटिंग चल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 9, और ये 1 1 नंबर डिक्रीज करते जा रहे हैं. So it is 9 8 7 6, 9 8 7 6 5. So we can clearly identify the next step. It should be 9 8 7 6. लास्ट स्टेप में 5 तक था, हम यहाँ पर 4 तक लेकर जाएंगे. सिमिलरली अगर हमें नेक्स्ट स्टेप भी आइडेंटिफाई करना है, सो इट विल बी 9 8 7 6 5 4, and we'll stop at 3. So we have successfully identified the next 2 steps of this pattern. The solution is the same. It is 1 2 3 4 5 6 into 8 plus 6, and the reverse counting, that is 9 8 7 6 5 4. और नेक्स्ट स्टेप पे हमने 6 के बाद एक 7 इंक्रीज कर दिया, 6 के बाद को कॉन्जिक्यूटिव 7 लगा दिया, और यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग जो गई वो 3 तक गई. So you can easily identify the next steps as well by simply following this pattern. Given on this side is the way how you've calculated these steps, which I've already explained to you in the previous slide. You can even continue this pattern for as long as you want, obviously until the counting doesn't end, because it will end at 0. So this is it for this question and this presentation. Thank you so much for watching.